Faculty Development Program on the behalf of IQAC Jain Kanya Pathshala PG College. I welcome our Honorable Chief Guest Professor Dr. J.P. Pachauri sir, Honorable Management Committee of the College, our respected Principal Dr. Seema Jain ma'am, Program Convener Dr. Santosh Tomar ma'am, and all the participants who are present in this session. As we know that today our Honorable Chief Guest Professor Dr. J.P. Pachauri sir needs no introduction because he is the brightest star in the sky of sociology and social work. Dr. J.P. Pachauri sir, former professor and head of the Department Sociology and Social Work, HNB Gadwal University, Srinagar, Gadwal. He is expert in social demography in rural sociology. Today our topic is research methodology. Our topic is very interesting, but a little difficult. But our Honorable Chief Guest will explain this topic very easily for us. Now, I would like to invite our respected principal, Dr. Seema Jain ma'am, to continue the session. Well, a very हेलो जी, हाँ नमस्कार सर जी। अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही तो आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ तो आवाज आएगी। हाँ सब दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। नाउ यू कैन हियर मी सर। हेलो संतोष। हाँ जी, आवाज आ रही है मैम, आ रही है। नहीं नहीं, सर को नहीं आ रही है। सर का सर मैं देख रही हूँ मैम, एक बार जरा देखो कि उनको ऑडियो से कनेक्ट करो। ठीक है मैम, ठीक है मैम, कनेक्ट है सर, ऑडियो से कनेक्ट है। ओके ओके ओके। Where has he gone? मैम देख। Yes. Can you hear me, sir? Hello, Professor Pachauri. Can you hear me now? मैम अभी मैम सर दोबारा ज्वाइन करेंगे, उन्हीं की उसमें कोई दिक्कत है, टेक्निकली दिक्कत है, और वो दोबारा करेंगे अभी ज्वाइन। हाँ जी मैम, हो गए हैं सर कनेक्ट दोबारा। हेलो हेलो सर, आप सुन सकते हैं? हेलो Professor Pachauri, I think he is connecting again. Can you hear me now? Am I audible to you, sir? ऑडिबल नहीं हो रहा है ना सर। हेलो 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 संतोष। हेलो
हाँ जी You please try सर, to. आप एक बार और दोबारा ज्वाइन करें, एक बार आप दोबारा ज्वाइन करें सर। चलिए हम शुरू करते हैं। डॉक्टर पचौरी is having some technical problem. I have messaged him to join again. So in a short while from now, he will join us. नहीं मैम, अभी ज्वाइन नहीं हुए। Yes. Professor Pachori, can you hear me? Am I audible to you? Am I audible to you, sir? Hello? 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 Dr. Santosh? हाँ जी मैम। Hello, can you hear me? हाँ जी मैम, मैं सुन रही हूँ मैम। सर का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारे से, और उनमें यहाँ से नहीं है। सर से बोलो या तो दोबारा करे, या फिर हो नहीं रहा है उनका। I'm not able to say anything to him because he is not hearing. I have messaged him now. हाँ, मैं सुनी नहीं। Hello? हाँ जी मैम, हो ही नहीं रहा है सर का। क्या मैम सर का म्यूट हो रहा है। I think he has started his lecture. मैम शायद सर दोबारा ज्वाइन करेंगे, अभी लेफ्ट हुए हैं वो ग्रुप से। मैम सर अभी लेफ्ट हुए हैं ग्रुप से, दोबारा वो कर रहे हैं कोशिश ज्वाइन होने की। हाँ जी सर। सर आपका माइक म्यूट है, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट करिए सर। हाँ हो गए। हाँ जी ठीक ठीक सर, ठीक। ऑडिबल सर, ऑडिबल। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है। यस सर, यस सर। ओके वेलकम सर।
Welcome, welcome, welcome. हाँ जी। Yes. Yes. Professor Pachauri, I would like to welcome you on behalf of our management committee and faculty members. And here we are gathered digitally to hear your address. And we are fortunate enough to have your time for us. And we are lucky enough again to hear you because you are such a, I should say, very learned and having a command over, over your subject. And you will be highlighting, the issues regarding research and research output. So once again, I welcome you, sir. So please start your address. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Good evening to all. Good evening, sir. Respected Dr. Seema Jain, Principal of the college, and IQAC Coordinator, Dr. Santosh Ji, Managing Committee members, and all my colleagues, those who are from different colleges. ये बड़ी आपको पता है कि ये बड़ा अजीब सा स्थिति है लॉकडाउन में ये वेबिनार का आयोजन करना और इस पे कनेक्ट होना पर्टिकुलरली हम जैसे लोगों के लिए और मुश्किल है। यंग लोग बहुत जल्दी सीखते हैं, हम लोग बड़ा लेट सीखने वाले लोग हैं। एनीवे और ये पिछले एक महीने से लगातार कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि ये वेबिनार से बात करनी पड़ रही है। कभी हमने सोचा नहीं था कि इस तरह का आयोजन भी होगा जहां लोग हमें सुनेंगे और हम किसी की बात का इंटरेक्शन हमसे नहीं होगा। This is really a challenging thing for our society. I think this is a FDC program. First of all, I would like to congratulate Dr. Seema Jain, and I'm thankful to Dr. Seema Jain for inviting me and giving this opportunity to address all those persons who are from different field, different areas. Because I was seeing this program, actually a lot of people are joining from different colleges and some research scholars, some senior faculty members. लेकिन आपसे बात की कि जो हमेशा बोलने का तरीका रहा है, क्लास में पढ़ाने का भी तरीका रहा है, एड्रेस करने का जो तरीका रहा है वो ये रहा है कि ऑडियंस मेरे सामने हो, लेकिन यहाँ ऑडियंस जो है वो दूसरी तरफ है और इंटरेक्शन हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। एनीवे मुझे डॉक्टर सीमा जैन ने अभी करीब 5-6 दिन पहले ये बताया कि एफडीसी प्रोग्राम है। ये भी नहीं बताया कि एफडीसी प्रोग्राम है। उन्होंने कहा नहीं आपको एक लेक्चर देना है। आई वाज नॉट नोइंग एक्चुअली व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स ही इज प्लानिंग एक्चुअली। ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें जो हमारी फीमेल फ्रेंड्स होती है ना वो हाइड करती हैं, छुपाती हैं, बताती नहीं आसानी से, लेट बताते हैं। तो आज उन्होंने बात की, मैंने कहा भाई मुझे बता दो कि है क्या, एक्चुअली आई एम नॉट नोइंग। तो आज जब उन्होंने पूरा मैसेज दिया तो आई वाज रियली मुझे ये प्रोग्राम देख करके बहुत अच्छा लगा कि रियली द इनिशिएटिव शी हैज टेकन एक्चुअली टू अरेंज दिस प्रोग्राम for the faculty development program. Really a wonderful task he has taken, and a lot of people from different areas he has invited and they have given the talk on this on different aspects of the higher education system. मुझसे जब वो कह रही थी कि आप थोड़ा ये कौन बहुत ज्यादा, देखो यही प्रॉब्लम होती है। जोर से बोलूंगी। अब उनसे कहिए कि थोड़ा अपना माइक म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट कर लें और झगड़ा घर में करें, यहाँ ना करें। मैम कर दिया, सबको म्यूट कर दिया है मैम। हाँ जी डॉक्टर संतोष, पहले आपको ध्यान ओके नहीं, अब ध्यान लॉकडाउन में किसी को ध्यान नहीं आता समय पर ना, गवर्नमेंट को भी ध्यान नहीं आया कि हमें क्या करना है, तो उनको क्या ध्यान आएगा। एनीवे
लेट मी कम टू द सब्जेक्ट, अदरवाइज टाइम जो है निकल जाएगा। मुझसे उन्होंने कहा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कुछ बात करनी है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में इसके बारे में बात शुरू करूं मैं आपसे कि रिसर्च जो है के बारे में हम कहते हैं कि ये ट्रूथ को जानने के लिए है। वी आर कंसर्न फॉर, वी वांट टू नो द ट्रूथ, वी वांट टू गेन द नॉलेज। हम ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं। इसके बैकग्राउंड में अगर मैं बात करूं आपको रिसर्च के बारे में थोड़ा सा अगर आप सोचें और समझें तो आप देखिए कि इस समय जो हमारी सोसाइटी है, हालांकि इस चारों रूप जो मैं अपनी तरफ से मैंने ये चीज की है, ये जो सोशियोलॉजी वाले लोग हैं ना, वो ये ना कहें कि ये कहां से नई सोसाइटी पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये क्योंकि सोशियोलॉजी के कई लोग मैं देख रहा हूँ, कई लोग हैं, संतोष जी भी सोशियोलॉजी की हैं, आई थिंक सो, और सीमा जैन मैडम तो बहुत क्रिटिकल है, वो कहीं से कुछ भी पकड़ लेंगी। तो एनीवे तो ऑडियंस को मैं बता दूं, हमारा मैडम जैन का बहुत पुराना संबंध है। हम लोग नेक में थे लॉन्ग बैक, आई थिंक 10 years back. 10 years back, yes. 10 years back, we were there in the Maharashtra in one of the committee, और since then continuously we are associated. Normally लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैडम याद रखती हैं, ये बड़ी बात है, ये उनका बड़प्पन है। आप आरजी कॉलेज में भी आए थे? हाँ, यस यस, मुझे बिल्कुल याद है, आरजी कॉलेज में मैं आया था, आपने ही बुलाया था तब। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि सोसाइटी को अगर आप 4 फॉर्म में देखने की कोशिश करें, एग्रीकल्चर सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी के बाद हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, और टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी के बाद आज जो सोसाइटी है ये नॉलेज सोसाइटी है। ये दिस आई कॉल दैट नॉलेज सोसाइटी। तो ये नॉलेज जो सोसाइटी है, ये नॉलेज आएगी कैसे? हाउ यू विल जनरेट द नॉलेज? ये इसका तरीका क्या होगा? या जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी में आज जो हम लोग बात करते हैं, ये चारों सोसाइटी एक साथ हमारे देश में हैं। हमारे यहाँ आई थिंक सर का कनेक्शन मैम, सर अगेन कनेक्शन इज गॉन। पैदा कैसे हुई या कैसे होगी? नॉलेज सोसाइटी कैसे बनेगी? कैसे, कौन बनाएगा इसको? नॉलेज, देखिए ये जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का जो समय था और समय है आज भी, हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन हम सब लोग गूगल से डाउनलोड करते हैं। गूगल को मैं कहता हूं गूगल अंकल, ये अंकल है हमारे, ही कैन गिव यू ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन गूगल अपने में इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करता है, जनरेट करने वाले कोई और लोग होते हैं। गूगल इज ए स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। गूगल तो स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का। गूगल के पास कोई अपना जनरेशन नहीं है, जनरेशन करते हैं आप लोग, जनरेशन करता है रिसर्चर, जनरेशन करता है साइंटिस्ट, जनरेट करता है उसको जो लोग काम करते हैं रिसर्च में, पढ़ने पढ़ाने वाले जो लोग हैं, दे जनरेट एक्चुअली द इंफॉर्मेशन। ओके, आज जो स्थिति है नॉलेज सोसाइटी की, वही मैं बात कर रहा था। नॉलेज क्यों क्रिएट कौन करता है? देखिए, नॉलेज को क्रिएट करना, नॉलेज को स्टोर करना और नॉलेज को डिसेमिनेट करना, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों चीजें रिसर्च से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैंने बैकग्राउंड में ये बात की और मैं अपनी उसी बात पे आता हूं। रिसर्च के माध्यम से ही हम नॉलेज क्रिएट करते हैं। जितने भी आप नई नई चीजें, नई नई थ्योरीज, नए नए सब्जेक्ट, नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई चीजें जो भी आप देखते हैं, जो दे आर ऑल फ्रॉम द रिसर्च। और वो जो रिसर्च है वो फिर पब्लिश फॉर्म में आपके सामने आती है। वो आती है बुक्स के रूप में, जर्नल्स के रूप में, वो आती है आपके सामने जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसके रूप में। वो स्टोर हाउस है और डिसेमिनेट करने का काम भी आप जैसे लोग करते हैं, टीचर्स करते हैं, फैकल्टी मेंबर्स करते हैं डिसेमिनेट करने का। तो ये जो रिसर्च है, तो रिसर्च को बैक में फिर हम जाते हैं, तो रिसर्च करते क्यों हैं और रिसर्च है क्या? रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च मेथड 2 अलग अलग चीजें हैं, दोनों जुड़ी हुई हैं। दोनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करें। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ए प्रोसेस। ओके, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक प्रोसेस है which is having several steps, और रिसर्च मेथड इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसको कंफ्यूज हमें नहीं करना चाहिए। रिसर्च मेथड में आपके डाटा कलेक्शन का मेथड हो सकता है,
थ्योरीज की बात हो सकती है, और चीजों की बात हो सकती है। तो रिसर्च मेथड इज ए डिफरेंट, मतलब दोज मेथड्स व्हिच यू आर यूजिंग इन द रिसर्च, दे आर कॉल्ड रिसर्च मेथड। बट इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी, दैट इज ए प्रोसेस व्हिच यू आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ you see steps, that is called research method. The first thing I want to make it very clear. Now let me come to the what do you mean by research. Research means investigation. किसका investigation? नए ideas का investigation, और जो investigate हो चुका है उसको verify करना, उसको verification करना है research के माध्यम से. We try to verify those things, we try to investigate those things, we try to get new knowledge. अभी जो नॉलेज सोसाइटी की बात की थी, नॉलेज को एनहेंस करना, नॉलेज को बढ़ाना, नॉलेज को वेरीफाई करना, नॉलेज को में और वृद्धि कर, जितनी भी थ्योरीज हैं हमारे पास, जो भी बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, उन थ्योरीज के बाद आप देखते हैं कि हम नई नई थ्योरीज और आ जाती हैं। आज आपके पास बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट ऐसे मिलेंगे जो पहले हमने नहीं सुने थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए वीमेन एम्पावरमेंट की बात कोई नहीं करता था, लेकिन दीज आर द न्यू सब्जेक्ट, जो न्यू टॉपिक्स जो आए हैं ये थ्रू रिसर्च ही आए हैं। तो रिसर्च में हम इन्वेस्टिगेट करने की बेसिक चीज क्या है, हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करते हैं। बिना किसी कॉज के कोई भी घटना घटित नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। ऑल दी सोशल फिनोमेना, चाहे वो किसी तरह की रिसर्च हो, एवरी सोशल फिनोमेना इज हैविंग सर्टेन कॉज, उसका एक कॉज होता है और उसका तभी इफेक्ट सामने आता है। तो हम नई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, पुरानी चीजों का वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, और एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रिसर्च इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और एक चीज और ध्यान रखिए, नोबडी इज परफेक्ट इन रिसर्च। रिसर्च में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट किसी आदमी को अपने को समझना भी नहीं चाहिए, है ना। परफेक्ट अगर आप समझ लेते हैं, इसका मतलब यू आर स्टॉपिंग योर नॉलेज, यू आर स्टॉपिंग योर ओन क्रिएशन, ओन जो लर्निंग है उसको आप स्टॉप करते हैं। तो ये रिसर्च में हम कंटिन्यूअसली अपनी नॉलेज को एनहेंस करने की कोशिश करते हैं। यहां ये बात आती है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप कैसे प्रोसेस करते हैं। पहले नॉर्मली बात की जाती है कि हमारा सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम की बात करते हैं हम। देखिए यहाँ दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, एक होता है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम किसे कहते हैं? प्रॉब्लम इज नथिंग बट दैट इज एक बेसिक, एक लाइन में अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम होती है एक क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट। प्रॉब्लम इज नथिंग बट दैट इज ए क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट, एक प्रश्नवाची वाक्य है। समस्या, कुछ प्रश्न है आपके माइंड में, यू आर हैविंग सर्टेन क्वेश्चंस, यू आर हैविंग सर्टेन हंचेज, यू आर हैविंग सम डाउट्स इन योर माइंड। जो डाउट्स हैं, जो हंचेज हैं, जो आपके माइंड में है, उनका कुछ आंसर चाहते हैं आप। तो एक ब्रॉड वे में सिलेक्शन करना और उसको रिसर्च के लायक बनाना, दो बातें अलग अलग हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, उससे पहले सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। कई बार आपने देखा होगा, आपके पास भी स्टूडेंट आते होंगे और जो हमारी नई फैकल्टी है उनके पास रिसर्च स्कॉलर आते हैं, वो कहते हैं साहब मुझे टॉपिक दे दो। आपने देखा होगा सीमा जी, हाँ सीमा जी मेरी बात सुन रही, सो गई? yes, I am listening. नहीं, मुझे लग रहा है कि बाबा रामदेव का योग तो नहीं करने लगे आप आंख बंद करके? No. तो मैं बात कर रहा था कि रिसर्च में जो हम ये बात करते हैं कि हम किस तरह से, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि मैडम हमें टॉपिक दे दो, तो और प्रॉब्लम बताओ, हमारा इस टॉपिक पे काम करना है। तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता था कि यार टॉपिक तो ऐसा है कि मैं कोई बनिए की दुकान तो है नहीं कि वहां से खरीद के तेरे को दे दूं मैं टॉपिक। हाँ, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है। ओके, आप टॉपिक कहीं नहीं, बाजार में नहीं मिलता है। और मैंने कहा बाजार में मिल रहा है तो दुकान से खरीद लिया, 10 रुपए 20 रुपए किलो में कुछ टॉपिक तेरे को मिल जाए तो वहां से ले आओ। नॉर्मली ये बच्चे करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि टॉपिक मीन्स द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को समझिए, और प्रॉब्लम आपके इंटरेस्ट की होनी चाहिए। द रिसर्चर शुड हैव द इंटरेस्ट। इफ ही इज नॉट हैविंग एन इंटरेस्ट, इफ ही इज चूजिंग द टॉपिक अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द गाइड, तो वो क्या रिसर्च करेगा, मुझे ये बताइए। अगर वो गाइड के टॉपिक के इंटरेस्ट को चूज कर रहा है तो वो रिसर्च नहीं कर सकता है, जो मैं मानता हूं। हम तो एक फैसिलिटेटर हैं, हम उसको एक स्मूथ वे बताते हैं। हम जो टीचर है, वो गाइड है, वो ये बताता है कैसे करना है आपको काम,
अपने टॉपिक को चुनिए, अपने तरीके से बात करने की कोशिश करिए, आपका इंटरेस्ट क्या है उसको जानने की कोशिश करिए। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। हम एक ब्रॉड वे में पहले एक चुनते हैं किसी को जहां हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आज देखिए कोविड-19 के अंतर्गत लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। मैं यहीं से एक चीज मैंने अभी पकड़ रहा था, मैं देर सोच रहा था कि आप देखिए जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहा है ना, माइग्रेंट लेबर्स पूरे हिंदुस्तान से माइग्रेंट लेबर जो करने वाले लोग थे, बाहर करने वाले लोग थे, वो हमारे सबसे ज्यादा यूपी और बिहार में आए हैं। आपको पता है यूपी और बिहार में 70 और 80% लोग वहां आ गए हैं। और आप देखिए इस कोविड-19 का एक जो माइग्रेशन के जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इवन द सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जानते होंगे जो माइग्रेशन की जो थ्योरीज थी वो ये कहती थी, पुश एंड पुल थ्योरी थी। पुश करती थी, विलेज से कंडीशन उसको पुश करती है। वहां जो है उसके पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं थी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं थी। घर वाले कहते थे कि जा यहां से, कुछ काम नहीं कर रहा, सारे लोग काम कर रहे हैं, कोई बॉम्बे चला गया, कोई कलकत्ता चला गया, कोई कहीं चला गया, बट यू आर नॉट वर्किंग। तो आदमी को कंडीशन फोर्स करती थी और वो वहां जाता था जहां कंडीशन उसे पुल कर रही है। और पुल करने के लिए मींस जहां इकोनॉमिक उसकी फैसिलिटीज थी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, इसलिए लोग जो है आपने देखा बहुत सारी जगहों पर लोग जो है गए, बॉम्बे गए, कलकत्ता गए, दिल्ली गए, सारे लोग गए। अब देखिए वो कोई उल्टा है। एक थ्योरी को अगर आप ये समझेंगे, नाउ द सिचुएशन हैज टोटली रिवर्स। अब देखिए क्या हो रहा है, वो जो शहर था जो उसे पुल करता था वो उसे पुश कर रहा है, वो उसे धक्का दे रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन, वहां कोई इकोनॉमिक उसकी सिक्योरिटी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या आ गई है, उसके अंदर एलिनेशन आ गया है, अलगाव आ गया है। दीज आर दी सम ऑफ द टॉपिक्स जो रिसर्च के लिए हमारी यंग जनरेशन के लिए हो सकते हैं। वो जो थ्योरी है टोटली चेंज हो गई, वहां पुश फैक्टर काम कर रहा है और गांव पुल कर रहा है अपनी ओर। तो अल्टीमेटली अब जो माइंड में ये प्रश्न आता है मेरे कई बार कि क्या वाकई में इकोनॉमिक कंडीशन व्यक्ति को फोर्स करती है? गांवों में तो इकोनॉमिक फैसिलिटीज नहीं है, दैट इज कॉल्ड जो इमोशन है फैमिली वहां वो। हालांकि एक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी आजकल आपको देखने को मिल रहे होंगे कि जहां गांव वाले लोग जो हैं अपने ही बेटे और बहू को आने नहीं दे रहे हैं गांव में कि तुम मत आओ। ये रेयर केसेज है, ये बहुत, इसको मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ केसेज ऐसे हैं। लेकिन आदमी परेशान होकर के लौट रहा है अपनी गांव की ओर। तो ये कुछ एरियाज हैं, ये प्रश्न आते हैं माइंड में। तो रिसर्चर को हमेशा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, उसको ये मानना चाहिए कि मेरे समाज में क्या घटित हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है और इसके क्या आंसर्स हो सकते हैं। हम इन्हीं तीन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। इसको कोशिश करनी चाहिए हमको रिसर्च। तो आपने प्रॉब्लम चुनी, इसके बाद जो प्रोसेस में मेथोडोलॉजी में जो दूसरी चीज आती है उसको हम कहते हैं रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। बहुत सारा रिव्यू ऑफ द लिटरेचर आप लोगों ने किया होगा, हमने भी किया था, हाँ? लेकिन कई बार मुझे अपनी जब थीसिस में देखता हूँ, मैंने 82 में थीसिस की थी अपनी, 82 में मेरी पीएचडी हुई। तो 82 के बाद जब मैं अब थीसिस देखता हूँ, यार मैं सोचता हूँ यार ये तो बेकार है, बकवास है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उस समय की कंडीशन में वो ठीक थी। उस समय की कंडीशन में जितनी नॉलेज मुझे दी गई, जितना मेरे पास नॉलेज थी, तो ये कई बार ऐसा लगता है ना कि आज की स्थिति में मुझे लगता है कि यार इसमें ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, ये नहीं है, ये भी होना चाहिए था। तो ये क्या है, लर्निंग फेज है। वो हमने सीखा, हमने जाना, अपने नॉलेज को हमने बढ़ाया और रिसर्च जो और रिसर्चेज हुई थी उससे ये जानने की कोशिश की। तो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और मैं बताऊं आप सभी लोगों को, कुछ लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे बहुत सारी फील्ड में, लेकिन ये जो स्टेप्स है ना, ये सब जो है ना इंटरलिंक्ड है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। ऑल दी रिसर्च जो स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, वो सब इंटरलिंक्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा प्रॉब्लम पहले, दूसरा मैं बात कर रहा हूं आपसे, कह रहा हूं रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। लेकिन भाई रिव्यू ऑफ द लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट होगी? मुझे कैसे पता लगेगा कि इस एरिया में काम हो चुका है? मुझे कैसे पता लगेगा कि कहां जो है लेकुनाज हैं? मुझे कैसे पता लगेगा कहां जो है कुछ एरियाज है जहां गैप्स हैं? तो जो रिव्यू है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर मींस हमसे पहले जिन लोगों ने
इस विषय पर काम किया है. Those persons who have worked on that topic. नेट की प्रॉब्लम है बाबा. सही है. नेट कनेक्शन पुअर है मेरे में, पता नहीं क्यों. मेरे में ही हो रही है प्रॉब्लम, है सारे में भी हो रहा है. वो तो सब में हो रहा है. सर की तरफ से है सर, मैडम. हाँ, अच्छा, ओके. आवाज नहीं आ रही क्या? वो नेट प्रॉब्लम है, नेट कनेक्शन. हेलो. सर के लग रहा है कि कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है सर की. हम्म. हाँ, नहीं. सर की नेट कनेक्शन में दिक्कत हो रही है. ऐसे ही लग रहा है. थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन अभी जो भी देखा कर सकते हैं. कॉन्फ्रेंस पे जाता है ना. संतोष, डॉक्टर संतोष. हाँ जी मैम. सर ने अभी एक बार लेफ्ट करा है सर. अभी दोबारा एडमिट हो रहे हैं सर. ओके. हाँ जी. वहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत हो रही है शायद. अच्छा, क्या तो डॉक्टर रीना मित्तल. अच्छा, डॉक्टर रीना मित्तल को भी ऐड कर लो. ज्वाइन कर लो. ठीक है ज्वाइन कर मैम. लो. हाँ ज्वाइन जी. करा लो रीना मित्तल को. उनका फोन आ रहा है. कितने सुंदर कृष्ण जी. वाह, हाउ ब्यूटीफुल. मैं तो कितनी बार मिली इससे. एक बार शादी में मिली थी मुझे. एक वंदना वर्मा को जानते हो, और एक निशा गुप्ता. तीन तो ये. एक वो जो सैनी है. ये भी थोड़ी देर घूमना. जब सर कनेक्ट होंगे तो मैं आ जाऊंगी. मेरी तो एक्सरसाइज करने से इधर 7 साइड बजे करेंगे एक्सरसाइज. बुरी हालत हो रही है. हाँ, कर तो लेंगे क्या. चाय पी लो. शिवा, मुझे भी चाय चाहिए. हाँ, कहती हूँ सुनो. इन्हें म्यूट कर दे.
सर का कनेक्शन शायद नेट कनेक्शन की दिक्कत हो रही है सर की, अभी एडमिट नहीं हो रहे हैं वो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है। जी मैम हाँ, आ रही है। जी हाँ, मैम। वो सर दिक्कत हो रही है नेट की, तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हमारे साथ अभी। जी मैम, तो मैम वेट करें। हाँ, वेट कर लेते, तब तक आप लोग एक ऐसे ही इंटरेक्टिव एक आपस में एक सेशन कर लेते हैं बात कि भाई कैसा लग रहा है कुछ। अगर कोई भी बोलना चाहता है कुछ, तब तक सर कनेक्ट नहीं होते हमारे साथ, तब तक अपने शेयर कर सकते हैं जो भी जितने सेशन हमारे हुए हैं जी उसी मैम। के, हाँ उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई भी अपनी बात रखना चाहता है तो आप रख सकते हैं। हेलो। हेलो, हाँ हेलो। आवाज आ रही? हाँ हाँ मैडम, मैं उदय बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं ये हाँ, बोल। बहुत वेलकम सर, फैकल्टी वेलकम। डेवलपमेंट के वेलकम हाँ सर। जी जी, थैंक यू। बहुत फैकल्टी डेवलपमेंट के आपके 3 दिन हो गए। एक सवाल मेरा ये है कि मैं प्रिंसिपल मैडम से पूछना चाहता हूँ कि एक अच्छे प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि डिपेंड करता है कॉलेज कितना अच्छा चल रहा है और उसमें फैकल्टी के साथ साथ प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व रहता है, तो क्या क्या होना चाहिए और किस तरीके से मतलब कॉलेज को अच्छे तरह से रन कराने के लिए प्रिंसिपल की क्या भागीदारी होनी चाहिए, ये भी एक होना चाहिए, पूछना चाहिए मैडम से। हाँ जी, मैडम बताएंगी अभी। मैम आपके लिए आई है क्वेरीज, वो आप बता दीजिए। नहीं बिल्कुल, तनाव में से शिक्षक रहेंगे तो कॉलेज अच्छा रन कोई करेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उदयपाल जी दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। मैडम मैं ये कह रहा हूँ फैकल्टी डेवलपमेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और सभी लोग वाकई इसीलिए जल्दी जुड़ जाते हैं आपके इस प्रोग्राम से, लेकिन एक सवाल अभी रह गया जो मेरे मन में है कि कॉलेज में जो डेवलपमेंट अच्छा कॉलेज चलता है उसमें फैकल्टी की तो भागीदारी होती है लेकिन प्रिंसिपल की भी होती है। यदि कॉलेज के शिक्षक तनाव में रहेंगे, फैकल्टी तनाव में रहेगी तो बड़ी दिक्कत होती है, तो प्रिंसिपल की क्या भागीदारी होनी चाहिए कि जिससे ये तो कॉलेज आप बड़ा अच्छा, नहीं प्रिंसिपल के पद पर आगे हम भी बनेंगे ही तो कैसे कॉलेज को मतलब बड़ा अच्छा आगे ले जाने के लिए मुखिया तो प्रिंसिपल ही होता है ना मैडम। अब ये तो देखिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, इसकी कोई गाइडेंस नहीं होती है, जो भी आपको विजनरी होना चाहिए, बस आपको विजनरी होना चाहिए कि आप क्या क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, क्या अच्छा करना चाहते हैं, क्या नई नई चीजें आ रही हैं जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, नए कोर्सेज लाना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आप आते हैं तो ये सोचते हैं कि इसका ये आगे बढ़नी चाहिए संस्था। और आपने देखा होगा जो ये होते हैं सीईओ होते हैं, सीईओ बनाए जाते हैं, सीईओ भी इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई वो उनकी कंपनीज को आगे ले जाएं, तो इसी यही वर्क प्रिंसिपल्स का होता है। और सब में क्वालिटी से पूछ लीजिए, शायद ये आपको फीडबैक देते हैं। हमारी फैकल्टी से पूछिए, हम ये इनसे ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका भी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। मैम यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक मैडम समस्या आती है, एक समस्या आपको आती है, पता है, बोलो मैं बोलूं मैडम, एक समस्या आती है, आपको पता है प्रिंसिपल के सामने कुछ और होते हैं, प्रिंसिपल के पीछे कुछ और होती है फैकल्टी। नहीं मैडम मैं और भी हाँ मैं कुछ आगे कुछ और होती है, पीछे कुछ और होती है। तो नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ, और प्रिंसिपल को प्रिंसिपल को ना, और जो क्वालिटी यदि एनहांस करना है ना, तो इन कच्ची जो इस तरह की बातें हैं ना, जैसे कई बार होता है कि वो मैम वो ऐसे कह रहा था, वो ये कह रहा था, यदि आपको क्वालिटी पे फोकस करना है ना, तो आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान देते हैं। हेलो एक मैडम और है उस पद पर, मैडम एक और चीज आती है, एक चीज और आती है प्रिंसिपल के पद पर। मान लो हर व्यक्ति में, हर टीचर में हर काम करने के लिए मतलब परफेक्टनेस नहीं होती है, कैलिबर नहीं होता है। कोई गेम्स में अच्छा है, कोई किसी फीस के लिए कन्वीनर बनाया जा सकता है, कोई नेक का कन्वीनर बनाया जा सकता है। कभी कभी ये बिना सोचे जो बना देते हैं ना, उससे बड़ी दिक्कतें आती हैं। मतलब प्रिंसिपल को ये भी पहचानना चाहिए, मैं सुझाव दे रहा हूँ मैडम, कि कौन किस काम के लिए बिल्कुल नहीं सिखाया जा सकता है, उसके अंडर में कन्वीनर नहीं बना, मेंबर बना दिया जाए पहले, पहली बार होता है प्रिंसिपल ये देखते हैं। हेलो हाँ आवाज कट रही है मैडम।
हाँ ये देखते हैं, हाँ ये देखते हैं कि कौन कौन अच्छे से इस काम को कर सकता है, वो सबकी को खींच के ले जाए, ऐसे व्यक्ति को वो चार्ज देते हैं। बिल्कुल। यदि आप उनको कहें कि भाई हम आपको करके दिखाएंगे, आप एक बार हमें मौका दें, तो मैं नहीं मानती कि प्रिंसिपल मौका न दे। आप खुद जाके कहिए कि आई कैन डू इट, प्लीज गिव दिस वर्क टू मी। हेलो जी 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 जी, सुनो। हेलो। हाँ जी मैम, आ रही है आवाज, आ रही है। हेलो, आ रही है मैम आवाज? मैम आ रही है आवाज। ये बहुत जरूरी है, और ये तो खैर वेरी भी करता है। मेरा मेरा व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है, किसी और का। कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, उसको सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं, बस ये किसी में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं तो उनको ठीक करने का काम उसको करना चाहिए। और सबको बस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यदि वो चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम उसको आएगी। तो आप भी जुड़िए प्रिंसिपल के साथ और कॉलेज के काम कीजिए, तो देखिए फिर कितना कितना अच्छा लगता है। देखिए प्रिंसिपल किसी को, या टीचर्स या प्रिंसिपल, एक कोऑर्डिनेशन होता है कि हमें आगे लेके जाना है कॉलेज को, सिर्फ, और कुछ नहीं है। कोई हमारी कोई आपस में कुछ वो नहीं है कि हम लोग बहुत क्लोज हैं या कुछ इस तरह के कोई मतलब हम लोग की कोई रिश्तेदारी है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सिर्फ यही है कि जो वर्क करता है उसको अप्रिसिएशन मिलता है। आप प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में देख लीजिए, जो बढ़िया काम करता है प्राइम मिनिस्टर उसको काम देते हैं कि नहीं देते? हेलो, लेकिन मैडम गैप नहीं रखना चाहिए टीचर से, जैसे स्टूडेंट्स। बिल्कुल नहीं, जैसे मैडम टीचर स्टूडेंट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे टीचर्स और प्रिंसिपल के बीच में भी गैप नहीं होना चाहिए। रोटेशन से भी काम किया जाता है। नहीं, अच्छा अनुभव है आपका। गैप नहीं होना चाहिए। किसने कहा गैप होगा? गैप होगा नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल तो टीचर ही है। सबसे पहले तो वो टीचर है, उसकी जॉब एज ए टीचर ही है, बाद में वो एडमिनिस्ट्रेटर है। जी जी, आपका काफी अनुभव है मैडम प्रिंसिपल के साथ। तो पहले तो हर कोई प्रिंसिपल टीचर ही है, और वो अपने आप को टीचर ही समझे, वो प्रिंसिपल ना समझे। वो तो ठीक है, उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया गया है, उसको एक जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आपको ये करना है। तो क्योंकि आज हम हटेंगे दूसरी टीचर, और प्रिंसिपल ही टीचर बनता है, टीचर को ही प्रमोशन होकर प्रिंसिपल बनता है। जी, तो ऐसा मैंने इसीलिए सवाल किया कि आपको काफी, नहीं मैडम काफी अनुभव है आपको, इसलिए मैंने प्रश्न किया था। मैम सर आ चुके हैं। थैंक यू मैडम। मैम हमारे चीफ गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम। सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए, ये बड़ा इनफॉर्मल इंटरेक्शन था हम लोगों का, और मैं चाहती हूँ ऐसा इंटरेक्शन आप करें, और कोई जो भी क्वेरीज हो आप लोग बिल्कुल इनफॉर्मल डिस्कशन कीजिए। आपको ये नहीं है, पर जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, ऑलवेज बी लॉयल टू दैट संस्था, ऑलवेज बी फेथफुल टू दैट एनवायरमेंट, डू योर लेवल बेस्ट। हेलो। हाँ जी मैम, सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जुड़ चुके हैं तो, बट ही इज नॉट विजिबल। ओके। हाँ जी मैम, दोबारा उनके साथ वो कनेक्शन की दिक्कत हो रही है मैम सर के साथ। ओके। हाँ मैडम, उनसे कह दीजिए कि वो अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे तो उनको हम लोग सुन पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वीडियो वो ऑन रखेंगे तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से कनेक्शन की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए उनसे अनुरोध कर दीजिए कि जरा अपना वीडियो बंद कर लें, और नो प्रॉब्लम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर, बात कर। ओके, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, सर ने वीडियो ऑफ कर लिया मैम, कर लिए। ओके ओके। सो प्रोफेसर पचौरी। मैम आवाज नहीं आ रही है उनकी अभी। अपने को अनम्यूट भी करेंगे ना वो? नहीं, उन्होंने अनम्यूट कर रखा है उन्होंने। हाँ जी सर।
सर आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। पचौरी सर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? आप एक बार अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है। ये देखिए, ये लॉकडाउन का ये जो है खेल है, सारा गड़बड़ कर दिया। मेरा वाईफाई जो है वो गड़बड़ हुआ, दोबारा से रिकनेक्ट करते करते ये हालत हो गई। एनीवे, तो हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि टाइम केवल ओनली 15 मिनट्स आर देयर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, अब ठीक है। हाँ, it doesn't matter sir, you can continue at any length of time. मतलब आप पूरा शोषण करेंगी? सर ज्ञान बांटना शोषण नहीं होता, ज्ञान बांटना एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज इज नॉट शोषण। नहीं, वेरी वेरी नाइस, सही कहा आपने, लेकिन आपने कहा कि कंटिन्यू करते रहो, कभी तक करते रहो। बीच बीच में पानी पी सकते हैं आप। नहीं नहीं, पानी तो आप वैसे ही पिला देंगी। चाय पी लीजिएगा फिर। सर चाय। हाँ ये सही है। नहीं, चाय मुजफ्फरनगर आके ही पियेंगे। अब मुजफ्फरनगर आएंगे तब। बिल्कुल सर, यू आर मोस्ट वेलकम। सो लेट अस पहले एनीवे लेट अस कंटिन्यू। तो मैं बात कर रहा था रिव्यू ऑफ द लिटरेचर की। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि बिना रिव्यू के प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन नहीं हो सकता है। और रिव्यू में 4-5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जो रिव्यू है वो जो जिस व्यक्ति ने काम किया है पहले उसके बारे में लिखें हम उसमें। उसके बाद किस टॉपिक पे उसने काम किया था, क्या प्रॉब्लम थी उसकी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये हमें जानना चाहिए। और इसके बाद हमें रिव्यू करते समय उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी। यहाँ जो है मेथोडोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है, किस तरीके से उसने काम किया था, कैसे उसने अपनी प्रोसेस की, रिसर्च की। और लास्ट में जो होता है वो होता है उसकी मेन फाइंडिंग्स क्या थी। नॉर्मली आपने देखा होगा पीएचडी स्कॉलर्स क्या करते हैं, वो लिखेंगे सीमा जैन और उन्होंने ये काम किया और ये एक लाइन में उसकी बात कह दी, खत्म हो गई बात। एक्चुअली दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, क्योंकि अनटिल अनलेस ये देखिए आपको 3 चीजों में मदद करता है। एक तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में मदद करेगा, एक आपके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने में मदद करेगा, और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, देखिए आप ये कहिए ना कि जो आदमी किसी रास्ते पे पहले जा चुका है और उससे हमें ये मदद मिल जाती है कि हमें भी उसी तरह से काम करना है, तो वो मेथोडोलॉजी में भी हमारी मदद करता है। और कंक्लूजन जो होते हैं उसके, वो हमें जब हम अपना एनालिसिस करते हैं उसके साथ जोड़ने में मदद करता है कि हमारी रिसर्च उसके साथ कितनी एसोसिएटेड है या कितनी नहीं है। Yeah, my question is that yes, somebody was asking some question, but I am not getting. आप मुझे पास कर दीजिए, क्या क्वेश्चन है इनका? Okay. Somebody wants to move question. No. Just I was seeing some question actually. Anyway, तो इसमें जो बात है वो असली from Rebat Mahanta. Yes. What was his question? I can read out the question. Should I read out the question? Yes. Please go ahead. Hello. Yes. I'm getting your voice. सर आप Hello. सर बाद में दीजिए सर, पहले बता दीजिए। Yes, my question अच्छा, is okay. that. Okay. Later on, आप क्वेश्चन उनके नोट डाउन कर लीजिए, then I will give the answers later on. Okay. लेक्चर के लिए बैठे हैं हम। आप मैम मैम कर रही है क्वेश्चन नोट सबके। जो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम 15 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन इसके बाद कर देंगे कंटिन्यूअसली। ओके, लेट मी कंप्लीट दैट। तो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब हम रिसर्चर जो है एनालाइज करता है तो वहां वो जोड़ने की कोशिश करता है, अपनी फाइंडिंग्स को अर्लियर रिसर्चेस के साथ जोड़ने की कोशिश। देखिए 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आप उस चीज को सपोर्ट करेंगे या आप कहेंगे कि आपका जो उन्होंने जो काम किया था दैट वाज उसकी फाइंडिंग्स वर डिफरेंट और इस समय की जो फाइंडिंग्स हैं वो वेरी डिफरेंट है। तो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्चुअलाइज करने के लिए, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के लिए,
थ्योरीज को जानने के लिए, मेथोडोलॉजी को जानने के लिए, और ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने के लिए, और फाइंडिंग्स के साथ अपनी रिसर्च को जोड़ने के लिए भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर जितना रिगरसली अगर स्टूडेंट करता है, उतना ही ज्यादा हमें अपने शोध कार्य में, अपनी रिसर्च करने में मजबूती मिलती है, उतना ही ज्यादा हम उस चीज के बारे में ज्यादा जानते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो उसके बात करते हैं कि उसके रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में ही हम कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो रिसर्च से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कंसेप्ट्स हैं। देखिए, कंसेप्ट को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आपने जो कंसेप्ट है उसकी डेफिनेशन लेके एक वर्केबल डेफिनेशन लेके चलते हैं आप, उस डेफिनेशन को हमें लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पॉवर्टी has been defined by different persons, unemployment has been defined by different persons, तो आप किस डेफिनेशन को लेके चल रहे हैं वो हमें देखना चाहिए। इसके बाद आता है हाइपोथेसिस। वैसे आपको मैं और बैक में जाऊं, जो रिसर्चेज है नॉर्मली, अभी जो हाइपोथेसिस की जो बात है, इस चीज को ध्यान रखिए कि कई बार हम ये नहीं जानते कि हाइपोथेसिस हमें कहाँ बनानी है और कहाँ नहीं बनानी है। हाइपोथेसिस क्या हर रिसर्च में जरूरी होती है? नहीं, जरूरी नहीं है। हर जगह हाइपोथेसिस जरूरी नहीं। कई बार क्या होता है कि हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि रिसर्च के बाद हाइपोथेसिस बाद में आती है, फॉर्मुलेट होती है बाद में बहुत, और वो दूसरे रिसर्चर्स के लिए उसकी मदद मिलती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। हाइपोथेसिस भी तभी डेवलप कर पाएंगे जब आपने रिव्यू ऑफ द लिटरेचर किया है। क्यों? हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज नथिंग बट दैट इज अ टेंटेटिव आइडिया। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव आइडिया है। टेंटेटिव आइडिया आप कैसे डेवलप करेंगे? टेंटेटिव आइडिया आप तभी डेवलप करेंगे जब आपने प्रॉपरली अपने सब्जेक्ट का रिव्यू किया है। अगर आपने सब्जेक्ट का रिव्यू प्रॉपरली नहीं किया है तो आप टेंटेटिव आइडिया नहीं डेवलप कर सकते हैं। कोई आइडिया किसी भी विषय के बारे में, अपने विषय के बारे में जब आप ये देखते हैं, आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हैं। अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो उस पर डिपेंड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? फॉर एग्जांपल कास्ट जो है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन कास्ट इफेक्ट करता है हमारी फर्टिलिटी को, कास्ट हमारी इफेक्ट करता है एज एट मैरिज को, कास्ट हमारे इफेक्ट कर सकता है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को। तो यहाँ पर दो अगर चीजों के बीच में रिलेशनशिप जानने की अगर हम कोशिश करते हैं तो कास्ट जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पॉवर्टी हो सकता है, एज एट मैरिज हो सकता है। ये अलग अलग चीजें, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। तो इन वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को हम जानने की कोशिश करते हैं हाइपोथेसिस के माध्यम से। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, अगर आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो उसको टेस्ट करिए। ओके, अदरवाइज वो हाइपोथेसिस नहीं होती, उसको हम प्रपोजिशंस कहते हैं। ध्यान रखिए, we always call that proposition if you are not testing, otherwise आप कंफ्यूज करेंगे। हाइपोथेसिस आपने बना ली और आपने टेस्ट नहीं किया है तो आप सीधे सीधे लिख देते हैं ये हाइपोथेसिस थी। अरे हाइपोथेसिस थी तो उसको टेस्ट करिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखिए, किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर है उसको जानने की कोशिश करिए। और वो हम नहीं कर, ज्यादातर हमारे स्टूडेंट जो है इस चीज को नहीं करते हैं। देखा देखी लोगों ने और ने हाइपोथेसिस बनाई तो मैं भी बना लेता हूँ, और कई बार वो क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस नहीं करीब 10-12 हाइपोथेसिस बनाते हैं, टेस्ट एक भी नहीं करते हैं। तो ये देखिए कि हमें कहाँ हाइपोथेसिस की जरूरत है, कहाँ नहीं जरूरत है, और उसको हाइपोथेसिस में हमें ये भी देखना है कि अगर हाइपोथेसिस है तो उसे टेस्ट करना है आपको, और अगर हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम रिसर्चेबल क्वेश्चंस कहते हैं, उसको हम प्रपोजिशंस कहते हैं, उसको लेकर के हमें चलने की बात करनी चाहिए। तो ये तीसरा स्टेप ये खत्म होता है। मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं क्योंकि आपका टाइम भी है, और अब लोग जो है इधर उधर अपना इवनिंग में इधर उधर घूमेंगे। घूमना वैसे ठीक नहीं है, लॉकडाउन है। ओके, एनीवे बैठे हैं, आप बताइए पूरा। नहीं, बीच बीच में मुझे इसलिए जो है लोगों की मोनोटोनी खत्म करनी पड़ती है, अदरवाइज सब लोग जो है ना वैसे ही मेंटल टेंशन में, तो दूल्हा बीच में मैं थोड़ा रिक्रिएशन क्रिएट कर देता हूँ। अपने स्टूडेंट्स में ऐसे ही करता था। ओके, आपका लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग है, कोई किसी का घूमने का मन नहीं कर रहा है। तो नहीं, सब लोग मेरे साथ ही घूमेंगे फिर। सर आप 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, यानी इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ वो है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर एनी टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च डिजाइन इज ए ब्लूप्रिंट, एक ब्लूप्रिंट है वो। उस ब्लूप्रिंट पे पूरा खाका हम तैयार करते हैं।
आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि हमें सब कुछ देखना होता है कि कैसे रिसर्च करनी है हमको। आपके पास क्या मटेरियल अवेलेबल है, कहां से मिलेगा, कब मिलेगा, क्या डेटा होगा, कैसे जो है उसे कलेक्ट करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे। तो रिसर्च डिजाइन नॉर्मली कुछ किताबों में 3 प्रकार की हैं, कुछ जगह 4 प्रकार की मिलती हैं, लेकिन नॉर्मली आप 3 ही कैटेगरीज में आप देखें। एक तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होती है, दूसरी एक्सप्लोरेटरी होती है, तीसरी जो है डायग्नोस्टिक है, और चौथी जो है एक्सपेरिमेंटल है। दीज आर दी बेसिकली 4 टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। यहां पर आप ध्यान रखिए, एक चीज मैं फिर लिंक कर रहा हूं, ये 4 रिसर्च डिजाइन 4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलती हैं। ध्यान रखिए, एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, अगर आपका पर्पस केवल ये जानना है, इफ योर पर्पस इज ओनली टू नो द only just you are going to describe something, so that is called descriptive. You are not going to tell anything, you are just describe. For example, विलेज के बारे में, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको कोई डिस्क्रिप्शन करना है, तो वहां डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होती है। और इस डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में सब कुछ फिक्स होता है, पहले से फिक्स होता है, यू कैन नॉट चेंज, दैट इज कॉल्ड रिजिड होती है, इसमें रिजिडिटी होती है। आपकी एरिया ऑफ स्टडी रिजिड है, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ जी, वो कनेक्शन प्रॉब्लम चल रही है सर के साथ। ओके मैम। हेलो, अगेन कनेक्शन। हाँ जी मैम, कोई अच्छा, सर के साथ प्रॉब्लम, वो कनेक्शन पुअर कनेक्शन है, उत्तराखंड में पुअर कनेक्शन है इसका मतलब। हमारा यूपी बढ़िया है फिर। मैम सर को शायद लग भी नहीं रहा होगा, क्योंकि नहीं है मैडम, उत्तराखंड की भी बहुत अच्छी है। मैम सर तो कंटिन्यू है, अभी उन्हें शायद नहीं लग रहा है कि उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब मैं उनको फिर से मैसेज डालती हूँ। बहुत अच्छा बता रहे हैं वो। जी मैम। आ गए नहीं वो नहीं आया। पटियाला वाले को मैंने कहा था सरदार जी, ठीक आ जाऊंगा। वो कह रहे थे सचिन हम भी एक दिन प्रिंसिपल बनेंगे, तो शिवाजी प्रेस में के टिप्स दे दो। प्रॉब्लम आई है बस, क्योंकि प्रॉब्लम इज फ्रॉम देयर एंड। मैम शायद सर अभी लेफ्ट हुए हैं, दोबारा वे करेंगे एडमिट होने के लिए। दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक हाँ है। जी, दोबारा ज्वाइन करेंगे मैम।
क्या बना रहे? भिंडी से पराठा खा लो या कुछ और खाना है? आ गए हैं सर, मैम आ गए हैं सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, ये बार बार मेरा जो है कनेक्शन ही गड़बड़ हो रहा है। हाँ जी सर, आ रही है सर। अब ये सर आवाज सोशियोलॉजी आ रही वाले है? बड़ी गड़बड़ी करते हैं। नहीं अरे मैम, ये गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, इनको मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर सबसे ज्यादा गड़बड़ी जो है ना वो लिटरेचर वाले करते हैं। तो किसी को, सुनिए मजाक में लीजिएगा इसको, लेकिन अदरवाइज नहीं। किसी को अगर अपनी दुश्मनी निकालनी हो तो अपने बच्चे को लिटरेचर वाले के अंडर में रिसर्च कराना शुरू करा दो। मैडम देखिए, सोशियोलॉजी वाले तो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। 4 दिन से हम यस आपके साथ हैं, देखिए। यस यस यस। और ये देखिए कह रहे हैं कि सब गड़बड़ी करते हैं, गड़बड़ी नहीं नहीं, करते। सोशियोलॉजी देखिए वाले तो मैडम काफी एक्टिव हैं, आपको भी लग रहा होगा। नहीं, लिटरेचर वाले भी बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत वेरी एक्टिव गुड। होते हैं। और वो तो वैसे भी लिटरेचर वाले तो बड़े इमोशनल और बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। इमोशनल भी और इंटेलेक्चुअल भी। हाँ देखिए वेरी वेरी वेरी, मतलब कहना चाहिए कि बड़ी सुनिए, अनकॉमन अब सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। जो 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 इमोशनलिटी होती है ना, वो दिमाग से नहीं आती है, वो दिल से आती है। दिल से आती है। सर और लिटरेचर जो है, लिटरेचर नहीं, हार्ट वालों के लिए है। आप जो है सोशियोलॉजी क्या माइंड वालों की है? नहीं नहीं, दिल वालों की है। बताइए तो फिर लिटरेचर भी दिल वालों का है। चलिए एनीवे, थोड़ा सा चेंज होगा, मेरा बार बार फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मेरी वाईफाई प्रॉब्लम यहाँ है कुछ इधर। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। वाईफाई प्रॉब्लम। तो हम लोग बात कर रहे थे कि रिसर्च डिजाइन में मैं बात कर रहा था कि जहाँ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होती है वहाँ केवल डेस्क्रिप्टिव तरीके से काम करना होता है, और वहां पर जो है रिजिडिटी होती है। एक्सप्लोरेशंस में क्या होता है कि वहां सब कुछ ओपन होता है, एवरीथिंग इज ओपन, नो रिजिडिटी। किसी आप यू कैन चेंज योर प्रोसेस। और ये जो तीसरी जो है डायग्नोस्टिक में हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू नो द कॉज, किसी चीज की प्रॉब्लम के कॉज को जानने की कोशिश करते हैं, और यहाँ हम सजेशन भी दे सकते हैं। देखिए ध्यान रखिए, जब आप डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होते हैं, लोग वहां भी सजेशन दे देते हैं रिसर्च में, वहां सजेशन देने की जरूरत नहीं है। जब आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन हो, ओनली देन यू आर सपोज टू राइट द सजेशंस इन योर थीसिस। आप किस बात के सजेशन दे रहे हैं? आप डेस्क्रिप्टिव में और एक्सप्लोरेटरी में केवल ये कह सकते हैं कि दीज आर दी सम ऑफ द फ्यूचर एरियाज ऑफ रिसर्च। फ्यूचर एरिया ऑफ रिसर्च आप प्रोपोगेट करिए, सजेशन नहीं दे सकते। सजेशन तो वहां देंगे कि जहां आपने कोई डायग्नोस किया हो, अगर डायग्नोसिस नहीं है। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इज नथिंग बट दैट इज ए हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यू आर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। वहां एक जानते हैं कि कंट्रोल सिचुएशन, एक अनकंट्रोल सिचुएशन। नॉर्मली साइकोलॉजी वाले हमारे जो लोग हैं वो इसमें बहुत ज्यादा स्टडीज करते हैं, और इसमें सोशियोलॉजी वाले भी जो सोशल साइकोलॉजी में बहुत सारी स्टडीज करने की कोशिश करते हैं, उसमें ये जानने की हम बात करते हैं। इसके बाद जो इसमें आता है वो आता है कि हमारी कौन सी डेटा कलेक्शन से पहले 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है एरिया ऑफ स्टडी, ध्यान रखिए एरिया ऑफ स्टडी, एक होता है यूनिवर्स, एक होता है सैंपल। 3 चीजों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत होती है। हमारे स्टूडेंट्स कई बार इस चीज को बहुत कंफ्यूजन में रह जाते हैं। एरिया ऑफ स्टडी इज अ बिग एरिया वेयर योर you see the sample is there, जहां सैंपल है वो बड़ा एरिया है, उसको हम एरिया यूनिट ऑफ स्टडी आप कह सकते हैं। जो यूनिट ऑफ स्टडी है दैट इज अवेलेबल इन द एरिया ऑफ स्टडी। एरिया ऑफ स्टडी में बहुत सारी, एक बड़ा बिग एरिया होता है। एरिया ऑफ स्टडी के बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मुझे चाइल्ड लेबर पे कोई स्टडी करनी है, तो चाइल्ड लेबर की स्टडी करने के लिए मैंने पूरा मुजफ्फरनगर का एरिया ले लिया, ओके, तो दैट विल बी कॉल्ड एरिया ऑफ स्टडी मुजफ्फरनगर। लेकिन चाइल्ड लेबर में किसकी स्टडी कर रहा हूं? अब यहां पर मुझे देखना होगा कि मैं चाइल्ड लेबर उन लोगों की बात कर रहा हूं जो होटलों में काम करते हैं,
मैं चाइल्ड लेबर उन लोगों की बात कर रहा हूं जो घरों में काम करते हैं, मैं चाइल्ड लेबर उनकी बात कर रहा हूं जो ईंट भट्टों पे काम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। नाउ आई हैव टू सी दैट, देन इस एरिया में से मैं उसको फाइंड आउट करता हूं, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स में मैंने अर्थात जो चाइल्ड लेबर है वो मेरा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो यूनिवर्स कहलाए, जिससे हम पॉपुलेशन भी कहते हैं। होल पॉपुलेशन की स्टडी अगर आप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसस स्टडी। इफ यू आर स्टडिंग ऑल द पॉपुलेशन, इफ यू आर स्टडिंग ऑल द यूनिट्स प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, उस स्टडी को नॉर्मली हम जो है सेंसस स्टडीज का नाम देते हैं, हर इकाई का जहां आप अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जब आप केवल कुछ इकाइयों को चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्टडी। सैंपल स्टडी उसे कहते हैं जहां कुछ इकाइयों को, जो कुछ, दे आर, सैंपल इज नथिंग, दैट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल, वो समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि होता है। दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑलवेज, वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सैंपल जो है आपको पता होगा, पढ़ा है आपने साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में और जगह, सैंपल जो है दो तरह की होती है नॉर्मली। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। Probability sampling is that sampling where you are having the possibility of selecting each and every unit. Anybody can be selected there. Probability है वहां select होने की, उसको आप किसी को भी select कर सकते हैं, उसे probability sampling की बात करते हैं। Non probability sampling क्या होती है कि जहां पहले से हमें पता नहीं है। देखिए आप यहाँ ये भी ध्यान रखिए, probability का इस्तेमाल वही होगा जहां आपको यूनिट ऑफ स्टडी का नंबर पता होगा। When you know the number, when you know कि कौन लोग हैं, कहां है, उसकी संख्या अगर आपको बताए, तो ओनली देन यू कैन गो फॉर द प्रोबेबिलिटी सैंपल। अदरवाइज आप प्रोबेबिलिटी सैंपल में नहीं जा सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में क्या होता है कि ये फिक्स नंबर हमें पता ही नहीं होता है। जब आपका जो ये जो एरिया है, वो एरिया के अंदर जो यूनिट्स हैं उसके बारे में हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम वहां नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल की बात करते हैं। बहुत सारे उसकी तरीके हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपल के अंतर्गत है आपके इसमें रैंडम सैंपलिंग है, रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत भी बहुत सारे तरीके आते हैं। सिस्टमेटिक सैंपल है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल है, ये सारे उसके तरीके हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में क्या होता है, इसमें कन्वीनियंस सैंपल होता है, जजमेंट सैंपल होता है, इसमें आपकी पर्पसिव होता है, और इसमें स्नोबॉलिंग भी होता है। स्नोबॉलिंग वो होती है जब बर्फ के गोले बना करके हम, जहां हमको लोगों को पता नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता करना है कि लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं, मुझे ये पता करना है कि अल्कोहलिक लोग कौन कौन है, स्टूडेंट्स मेरी जो बच्चे हैं वो अल्कोहलिक कितने हैं, तो वो इसका कोई डेटा नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर मैं किसी एक व्यक्ति को पता कर लेता हूं कि ये ही इज अल्कोहलिक या ही इज ड्रगिस्ट, तो उससे क्या होता है, उसके माध्यम से मुझे दूसरे लोगों के बारे में पता लग जाता है, उसी से पूछ करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्नोबॉलिंग। स्नोबॉलिंग में क्योंकि ऐसा है ना कि जो ड्रगिस्ट है वो दूसरे ड्रगिस्ट को भी जानता है, वो अपने दोस्तों को अच्छी तरह से पहचानता है, जानता है, तो उसके बारे में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये तरीके हैं जिसके माध्यम से इस सैंपल में साइज में देखिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जो साइज है वो ऐसा हो जो प्रोपोर्शनेट हो, जो जस्टिफिएबल हो, जो है आपको रिप्रेजेंटेटिव हो। मेन चीज है रिप्रेजेंटेटिव होना, यानी वो सारे उसका रिप्रेजेंटेशन करना हो। आज जो छोटे छोटे सैंपल को लेकर के जनरलाइज करने की कोशिश की जाती है और वो सटीक नहीं निकलते। आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान छोटा सैंपल लेते हैं और उसके आधार पर कुछ इलेक्शन रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, वो कई बार आपने देखा होगा वो रिजल्ट सही नहीं आते हैं, क्योंकि सैंपल का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सही नहीं होता है। इसके बाद जो है जब आपने ये चुन लिया, रिसर्च डिजाइन आपकी हो गई, सैंपल डिजाइन आपने देख लिया, फिर आप बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। डाटा नॉर्मली दो तरह के होते हैं, देखिए, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा इज दैट टाइप ऑफ डेटा वेयर यू आर कलेक्टिंग द डेटा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। You are going to the field, you are collecting the data, you are personally meeting with the pupil, you are collecting, मजा नहीं, for example, मुझे फील्ड में जाकर के डायरेक्ट में जाऊं और बात करूं। फॉर एग्जाम्पल मैं सीमा जैन जी से पूछूं खुद जाकर के, या सारे प्रिंसिपल्स की मैं एक स्टडी करना चाहता हूं कि उनका एटीट्यूड जो है हायर एजुकेशन के बारे में क्या है, वो उनका वीमेन एजुकेशन के बारे में क्या है, तो मैं एक अपना क्वेश्चनर या शेड्यूल बनाता हूं और उसको जाकर के मैं पर्सनली पूछता हूं। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, वेयर पर्सनली आई एम इंटरेक्टिंग। तो ये पर्सनल इंटरेक्शन की बात होती है जिसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा वो है जो हमसे पहले और लोगों ने कलेक्ट किया है, दोज पर्सन्स हु हैव कलेक्टेड दैट डेटा अपने लिए, और उसको हम अपने लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैडम प्रिंसिपल ने एक किताब लिखी है, उस किताब को मैं यूज कर रहा हूं अपने लिए, तो दैट बुक जो है मेरे लिए सेकेंडरी डेटा है। लेकिन मैडम जैन के लिए वो प्राइमरी है, बिकॉज सी है, वो उनका अपना वर्क है।
तो मेरे लिए वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। उसी तरह से जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। तो प्राइमरी और डेटा और सेकेंडरी डेटा में हम ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसके डेटा के कलेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, और ये तरीके जो हैं, जैसे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के तरीके में आप सर्वे का इस्तेमाल करते हैं, आप ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, आप इंटरव्यू का इस्तेमाल करते हैं, आप क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल करते हैं, आप क्वेश्चन शेड्यूल का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम केस स्टडी का भी इस्तेमाल करते हैं, आप जीनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी कंटेंट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्चुअली डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत सारी हैं। सेकेंडरी डेटा में जो कलेक्ट करते हैं उसके लिए तो हम लोगों की जो बुक्स हैं, जो जर्नल्स हैं, जो पब्लिश्ड मटेरियल है, अनपब्लिश्ड मटेरियल भी है, रिपोर्ट्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, उनको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी टेक्निक हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है, कौन सी टेक्निक हमारे लिए सही होगी। एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए जितना आप फील्ड वर्क करेंगे, जितना ज्यादा आप फील्ड वर्क करेंगे, उतना ही ज्यादा आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कई बार किताबों में कुछ और लिखा रहता है, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको सिचुएशन दूसरी फेस करनी पड़ती है। तो फील्ड वर्क के हिसाब से हमें बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है। कुछ लोग फील्ड वर्क नहीं करते, कुछ लोग फील्ड वर्क में जाते नहीं है, दूसरों के अनुसार दूसरों से डेटा भरवा लेते हैं या दूसरों को भेज के अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है। फील्ड वर्क से बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं, और रिसर्चर जो होता है उसकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति हो, चाहे रिसर्चर हो, हम उसी को देखना चाहिए, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसको इंटरेस्ट भी होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, और दूसरों की सुनने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए रिसर्च में दो चीजें बहुत जरूरी होती है, और एक टीचर को भी बहुत जरूरी है। जो ये सब टीचर बनने वाले लोग हैं, टीचर की भी क्वालिटी है। और यहाँ पर शेड्यूल में और क्वेश्चनियर में एक फर्क है। शेड्यूल का इस्तेमाल हमेशा वहां होता है जहां लोग सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड हैं, वो सॉरी एजुकेटेड हैं, वहां वी आर यूजिंग, मैं क्या बोल गया, गलत बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चनियर स्टडीज एजुकेटेड, वहां एजुकेटेड लोगों के लिए हम क्वेश्चनियर का प्रयोग करते हैं। शेड्यूल वहां जहां रिसर्चर्स को खुद भरना पड़ता है, दैट इज शेड्यूल। उनका नेट प्रॉब्लम होता है सर। हाँ, नेटवर्क की दिक्कत है, कनेक्शन प्रॉब्लम है। सर दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं मैम अभी। आए मैडम, तकनीकी आधारित शिक्षा की यही सबसे बड़ी कमी है, बाकी तो अच्छा है। हाँ जी सर, ये दिक्कत है। इसीलिए आमने सामने जो शिक्षा दी जा रही है वो इसीलिए उसका प्रभाव है। सर आज का सेशन देख के लग रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा जो है थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है ऑनलाइन। मैम जो भी कहिए, हमारी जो परंपरागत शिक्षा है ना, ये ऑनलाइन शिक्षा उसका पूरा विकल्प नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही।
जी। हेलो, जब तक सर दोबारा कनेक्ट होते हैं तब तक आप किसी को भी अगर कोई क्वेरीज हो तो वो बात कर सकते हैं। इंटरेक्शन सेशन हमारा हो जाएगा तो आप बात कर सकते हैं तब तक। मैम मेरे को ना अभी रिसर्च करनी है, तो मुझे तो इनसे बहुत अच्छे टिप्स मिल गए हैं। और कि रिसर्च से पहले डर ही लगता रहा, अभी इतने टाइम हो गया, मैं हेड भी हूँ डीएवी कॉलेज की मैथमेटिक्स में, पर इन्होंने इतने अच्छे से बताया तो मुझे लगता है कि अब तो बहुत आसानी से हो जाएगी मेरी पीएचडी। कोई मैथमेटिक्स में यहाँ पर हैं जो ज्वाइन करे हुए हैं? सर बहुत अच्छे शिक्षक हैं और बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। इनको मैं कई बार सुन चुका हूँ, इनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं और ऐसा बताते हैं कि मतलब वो मार्गदर्शक होता है इनका बताया हुआ। लेकिन ये दुर्भाग्य है टेक्नोलॉजी का कि ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हेलो मैम, सुबह बात हो रही थी रोबोट की। अगर रोबोट की बैटरी खत्म हो जाती है यही होता है तो इसलिए प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा। टीचर की तो पूरी जरूरत है, रोबोट शायद काम नहीं करेगा वहां पर। प्राचार्य जी से अनुरोध है कि वो अपना इस विषय में आगे बढ़ाएं सेशन को और अपना वक्तव्य दें। देखिए, as far as this online education is concerned, but this is the starting. अभी starting है तो अभी we are facing some problems, but later on it is going to it will progress and it will develop and it will envelop the entire gamut of learning, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आगे जाएगा। अब आप खुद ही देखिए, you are also enjoying this session. We are comfortable at home and we are enjoying, the people sitting abroad and all their views. Otherwise, we were deprived of this kind of a thing. So, won't you like to interact with one who is sitting in America and you are interacting and you are, sharing your views with those, and you are letting your students, see the world through Zoom learning and all Zoom pictures. मैडम इसी रिसर्च पर बात कर रहे हैं क्या अभी? सर ज्वाइन हो रहे हैं मैम। सर अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि we cannot avoid it. We will have to accept it and we will have to start it, because this is going to help us in future as well. और धीरे धीरे हम लोग बहुत ज्यादा इसके हैबिचुअल भी हो जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि आप देखिए आजकल हम पहले ईमेल, आज से 5 साल पहले ईमेल कहते थे, अरे ईमेल। जब मैंने ज्वाइन किया था 2009 में एज प्रिंसिपल, तो मैंने सबसे पहले मैंने यही कहा था कि मेल करना सीखें सब टीचर्स। तो मेल करने की बात सुन के सब टीचर्स ये कहते हैं पता नहीं क्या ऐसी बात कह रही है मैम, ये भी क्या चीज है। तो धीरे धीरे वी आर सीइंग कि दिस हैज बिकम द पार्ट ऑफ अवर लाइफ। अब कोई सा ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हम अपनी वी डू नॉट चेक अवर मेल, और मेल के थ्रू ही हम सारी बातें करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ये ई लेक्चर्स हैं, ई कंटेंट है, और ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ अवर लाइफ। मेरी आवाज आ रही है? कनेक्टिविटी आ रही सर, आ रही आ गई। ओके ओके। यस, तो ये बड़ा व्यवधान हो रहा है। अभी धीरे धीरे इसमें सीधे हम लोग सीखेंगे। और ये सीखना क्या है एक्चुअली, ये प्रॉब्लम तो कनेक्टिविटी की है ना? सर आप बार बार नोट्स देखने जाते हैं अपने? नोट्स नहीं देखने जा रहा। मेरी भाई नहीं, मैं जब आपके यहाँ कॉलेज में आऊंगा तो मैं नोट्स नहीं देखता हूँ। मैं तो 2 घंटे 3 घंटे वैसे ही बोल सकता हूँ।
There is no need for notes. No? Sir, it was a joke. Yes, we know very well. This is a, you know, we know where you are, sir. और आपका कितना हाई स्टेटस है. नोट्स एक्चुअली मेरा जो वाईफाई कनेक्शन है ना वो दूसरे कमरे में है, और वो जो है गड़बड़ हो जाता है तो फिर मुझे वो ठीक करना पड़ता है वाईफाई कनेक्शन, और वो मुझे चेंज करना पड़ेगा. वो उसका है आइडिया का, वो ठीक, वो एक्चुअली दैट इज नॉट वर्किंग इन दिस एरिया. अब जियो का इधर कनेक्शन अभी लाइन लग गई है तो उससे जो है थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी. तो कई बार क्योंकि अब इसमें ही रहना है, ये जिंदगी अब जियो में ही जीना है, जियो है तो जीना इसी में पड़ेगा ना अब तो. और कोई कोरोना की वजह से भी हो सकता है आगे भी हम लोग इसी मेथोडोलॉजी पे ही चले. नहीं, ये संभावना है, लेकिन ये मैं पर्सनली, देखिए ये मेथोडोलॉजी बहुत सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन हाँ ये है कि जब तक ये स्थिति रहती है तब तक हमें इसके साथ अपने को ढालना पड़ेगा और अपने को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा. और कोई तरीका नहीं. देयर इज नो अदर वे एक्चुअली, because this is the only way by which we have to learn also, we have to adapt ourselves. लेकिन मेरा पर्सनल ये है, क्लासरूम टीचिंग के साथ क्लासरूम टीचिंग का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है. क्योंकि जो स्टूडेंट होता है ना वो आपको केवल सुनता नहीं है, वो आपको देखता है, आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होता है, वो बहुत सारी चीजें लर्न करता है. वो खाली ये नहीं है कि आपका भाषण तो कोई भी कहीं भी सुन लेगा, भाषण का कुछ नहीं है. तो भाषण सुनने से तो आदमी का कोई, लेकिन जब आप किसी के सामने खड़े होते हैं तो उसका एक ऑरा होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और वो जो है रोल मॉडल का काम करता है. तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. एनीवे, तो रिसर्च में हम क्विकली बात कर रहे थे. हमने सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम की बात की, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम की बात की, हमने रिव्यू ऑफ द लिटरेचर की बात की. हमने रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में हमने बताया कि किस तरह से रिव्यू करना है. हमने इसके रिव्यू ऑफ द में ही कंसेप्ट की बात की, हमने हाइपोथेसिस की बात की, हाइपोथेसिस के साथ हमने रिसर्च डिजाइन की बात की. रिसर्च डिजाइन में हमने 3-4 तरह की रिसर्च डिजाइन की बात की. रिसर्च डिजाइन के बाद हमने बात की कि क्या एरिया ऑफ स्टडी है और क्या जो है आपका यूनिवर्स है और क्या सैंपल है. सैंपल भी हमने 2 तरह के बताए, एक रैंडम जो है सैंपल जो है एक प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है. इसके अलावा हमने बात की फिर डेटा कलेक्शन की. डेटा 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. उसके भी हमने तरीके बताए. क्वेश्चन नॉर्मली इंटरव्यू वहां होता है, इंटरव्यू शेड्यूल में मैं और ये बात कर रहा था आपसे, और क्वेश्चनेयर में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक कम्युनिकेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन और प्रॉपर रेस्पॉन्स. प्रॉपर कम्युनिकेशन एक टीचर के लिए भी बहुत जरूरी है. अगर टीचर कम्युनिकेट नहीं करता है प्रॉपरली, देखिए दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कितना जानते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जितना आप जानते हैं वो दूसरी तरफ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आदमी को, देखिए हमसे ज्यादा बहुत विद्वान लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको कि बहुत कुछ ज्यादा आता है, हम कुछ नहीं जानते उस चीज उनके सामने. लेकिन जितना आप जानते हैं, जितना एक टीचर जानता है, वो कम्युनिकेट करने की उसकी क्षमता क्या है, वो कितना कम्युनिकेट कर सकता है, वो दूसरे तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट. उसको समझने कोई. और रिसर्च में जो नेक्स्ट है, जो डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करने के बाद तब उसकी एनालिसिस ऑफ द डेटा होता है. आपके पास डेटा आ गया, फील्ड वर्क से लिया, चाहे आपने सेकेंडरी सोर्स से लिया, you are having a lot of data, or lot of data is there, but that will not help you until unless you are not going to analyze that. उसकी एडिटिंग करेंगे आप. एडिटिंग के करने के बाद तब आप देखते हैं कि उस डेटा में कौन सी चीज रिलीवेंट है, कौन सी इररिलेवेंट है, कौन सी इनकम्प्लीट है, कौन सी कंप्लीट है. उसके आधार पर आप क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासिफिकेशन करने के बाद अब तो देखिए बहुत सारी चीजें, जब हम लोगों ने रिसर्च की थी तब ये कंप्यूटर वगैरह नहीं था, हमें तो हाथ से टेबल शीट बनानी पड़ती थी, बहुत लंबी चौड़ी शीट बनानी पड़ती थी. आज आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटर में आप पारंगत हो, बट दे आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स पीपल. वो आपका एनालिसिस कर देंगे. वो आपके जो प्रोग्रामर है उसकी आप मदद ले सकते हैं. अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है. और सोशल साइंसेज में SPSS पैकेज इज देयर, लेकिन हर आदमी उसे खरीद नहीं सकता, उसका लाइसेंस अलग होता है, काफी कॉस्टली होता है, लेकिन उसको जानने वाले लोग बहुत हैं और उनकी आप मदद ले सकते हैं. तो आप उनकी मदद लीजिए. और वो, लेकिन ये मदद आपको इनिशियल स्टेज पे लेनी होगी. जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, जब आप क्वेश्चनेयर बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, तो उसमें वो कोडिंग करता है. क्यों? कंप्यूटर कोडिंग की भाषा समझता है. अगर आप कोडिंग की भाषा वहां प्रॉपरली उसकी हेल्प करके अगर कोडिंग करेंगे तो वो आगे मदद करेगा, अदरवाइज बाद में वो मदद नहीं कर सकता है. और ये प्रोग्रामर जो है आपको एनालिसिस करने में बहुत सारी टेबल्स आपको बना के दे देगा, क्रॉस टेबल्स बना के दे देगा. ये टेबल्स जब आपके सामने आ जाती हैं, इससे टाइम सेविंग होता है.
और ये आपको एनालिसिस, डेटा के एनालिसिस में मदद करती है। डेटा का जो एनालिसिस है, यहाँ पर भी हमको टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है। आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पर इस चीज के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। और जो लास्ट पार्ट है वो होता है इंटरप्रिटेशन करना। अब यहाँ जो है इंटरप्रिटेट करना है आपको। देखिए यहाँ फिर आपका रिव्यू ऑफ द लिटरेचर काम आएगा आपको। Again, you have to take the help from the review of the literature. So when you are making the interpretation, then you have to see that कि आपकी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स, जो इंटरप्रिटेशन आप करने जा रहे हैं, ये अर्लियर रिसर्च से मेल खाता है या नहीं खाता है, कितनी सिमिलरिटीज हैं, जो गैप्स थे क्या आपने वो भरे या नहीं भरे, या जो आप अपनी फाइंडिंग्स क्या देना चाहते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। और इस इंटरप्रिटेशन में हमें डेटा एनालिसिस के बाद जो इंटरप्रिटेशन है, रिव्यू ऑफ द, कई बार आपने देखा वो इंटरप्रिटेशन करते समय जो हमारे रिसर्चर होते हैं वो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर की कोई मदद नहीं लेते। वहां रिव्यू ऑफ द लिटरेचर का एक चैप्टर लिख दिया और लास्ट में उसकी कोई हेल्प नहीं लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। अदरवाइज उसकी क्या फायदा है। देखिए ऐसे खाली एनालिसिस करके बात कर देना कि इतने % लोगों ने ये कहा ये कहा, वो तो रोज जर्नलिस्ट करते रहते हैं, फिर रिसर्च क्या हुई उसमें? व्हाट इज रिसर्च? उसमें कोई रिसर्च नहीं होती है जब तक थ्योरीज के साथ उसको नहीं जोड़ते, जब आप उन चीज को समझने की कोशिश नहीं करते, आपकी फाइंडिंग्स दूसरे फाइंडिंग से जब तक आप जुड़ती नहीं है तब तक उस रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट बात जो इसमें होती है वो होता है रिपोर्ट राइटिंग। यू हैव टू राइट द रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट राइटिंग में देखिए ये है प्रेजेंटेशन का पार्ट। आपको अपने को प्रेजेंट करना है। आपने देखा होगा कि आप नॉलेज कितनी है आपको, लेकिन नॉलेज को प्रेजेंट करने की जो रिसर्च आपने जो की है उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना रिपोर्ट फॉर्म में होता है। और वो बहुत इसलिए है कि उसका गेटअप अच्छा हो, प्रिंटिंग अच्छी हो, टाइपिंग अच्छी हो, सही तरीके से आपने प्रेजेंट किया हो, उसमें टेबल्स जो बनाई है उसके जो है फुटनोट सही दिए हों आपने। तो किसी भी व्यक्ति का प्रेजेंटेशन देखिए ये बहुत जरूरी होता है। एक टीचर का भी क्लास में जब जाता है तो उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने को कैरी कैसे करता है, अपने को कैरी करने के लिए अब आप ऐसे ही कैजुअल ड्रेस में अगर आप चल दें तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? उस पर असर तो नहीं पड़ेगा ना उसको। तो इसको रिसर्च में भी जो कुछ भी आपने किया है, दैट प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो रिपोर्ट राइटिंग में इन बातों को हमें ध्यान रखिए। रिपोर्ट बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट में जहां आवश्यक है डायग्राम का भी इस्तेमाल करिए, जहां ग्राफ की भी जरूरत है वहां ग्राफ का इस्तेमाल करिए। और इसके बाद जब आप इसमें बाद रिसर्च में जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन के बाद रिपोर्ट पूरा पार्ट आप लिख देते हैं। इसमें फिर जो अपेंडिक्स के रूप में रिसर्च में जो आप लगाते हैं, एक तो बिब्लियोग्राफी आपको अपडेट होनी चाहिए। बिब्लियोग्राफी बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उसमें बताऊं, लेकिन सिंपल फॉर्म में आप अल्फाबेटिकली उसको अरेंज कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि सीक्वेंस वाइज वो आए, प्रॉपर तरीके से आए। उसके कई फॉर्मेट है बिब्लियोग्राफी बनाने के। तो बिब्लियोग्राफी को सही तरीके से बनाना हमको आना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिए रिसर्च में कि बिब्लियोग्राफी में कई बार बच्चे ना टेक्स्ट बुक लिख देते हैं, रिसर्चर भी टेक्स्ट बुक को नोट कर देते हैं। देखिए भैया टेक्स्ट बुक जो है BA MA में पढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग योर रिपोर्ट, व्हेन यू आर थीसिस राइटिंग आप लिखते हैं, उसमें टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल मत करिए। ओरिजिनल बुक्स को कोट करिए, ओरिजिनल जो वर्क हुए उनको कोट करने की कोशिश करिए। हमें उसमें लाने की कोशिश करनी चाहिए बिब्लियोग्राफी में, और जो आपने हेल्प ली है उसको उसके साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो दिस इज द एक नट सेल में रिसर्च प्रोसेस का पूरी बात है। अब ज्यादा हाँ मैडम कुछ कहने वाली हैं। तो ये रिसर्च का जो पार्ट है हमारा, मेथोडोलॉजी का जो पार्ट है, वो इसमें हमें इस चीज को जोड़ना चाहिए। दोबारा से फिर मैं समराइज कर देता हूं क्विकली। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर के बाद जो है हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन के बाद रिसर्च डिजाइन में ही फिर आपको एरिया ऑफ स्टडी है, यूनिवर्स है, सैंपल डिजाइन है, डाटा कलेक्शन है, डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स हैं, एनालिसिस ऑफ द डेटा है जिसमें क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन दोनों आते हैं, जिसमें एडिटिंग भी आती है। फिर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा करते हैं और उसके आधार पर आप जनरलाइज करते हैं। आप ऑन दैट बेसिस यू कैन मेक द जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन वाला पार्ट वहां बाद में आता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिसर्च मेथोडोलॉजी इन द ब्रीफ। अब आप बताइए। मैं डर ये रहा हूं कहीं फिर मेरा कनेक्शन न टूट जाए। बात आ रही है तारुल मैम, अगर कोई भी क्वेरीज अगर आई हो चैट बॉक्स में तो आप पूछ सकते हैं सर से। डॉक्टर साहब नमस्कार।
नमस्ते डॉक्टर साहब। सब विद्वानों में एक मतभेद है कि ये अनुक्रमणिका जो है वो कैसी बनाई जाए, तो उसको थोड़ी सी प्रकाश डाल दीजिए। और जो संदर्भ लिखते हैं उसको किस प्रकार से लिखा जाए, संदर्भ ग्रंथ को किस मतलब कैसे सेट किया जाए। अनुक्रमणा की हिंदी वो इंग्लिश बताइए जरा, क्या है? बिब्लियोग्राफी नहीं, वो बिब्लियोग्राफी नहीं है, अनुक्रमण का इज डिफरेंट। रेफरेंसेस और कंटेंट कंटेंट सर आगे क्या कहेंगे इंग्लिश में सर? कंटेंट नहीं, अपेंडिक्स नहीं होता, अनुक्रमणिका होती है शुरू का जो आप कंटेंट्स है सर। बिल्कुल कंटेंट ही है, कंटेंट है। सब आगे जो लिखा जाता है शुरू में जहाँ लिखते हैं आप उसको अनुक्रमणिका बोलते हैं। इंडेक्स सर, इंडेक्स मैं समझ गया। नहीं, उसको आप ये कहते हैं कि आपके चैप्टराइजेशन, इंडेक्स। ओके, अनुक्रमणिका ने के मतलब है चैप्टराइजेशन में किस तरह से आना चाहिए। देखिए नॉर्मली एक मैं बताऊं आपको, पहला चैप्टर हमेशा जो है हमारा इंट्रोडक्शन का होता है, जिसमें हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात करते हैं। थ्योरेटिकल कंसेप्ट उसके क्या है? कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन। अच्छा बता रहे हैं सर, बीच में फोन का नेट ठीक है ना? आइडिया का काम नहीं कर रहा। कचौरी सर का वाईफाई तो गड़बड़ कर। दोबारा अगेन सर का कनेक्शन ऑफ हो रहा है। मेरा भी ऑफ हो रहा है। आवाज आ रही है आपको? हेलो मैम, कैन यू हियर मी? हाँ, सुन रहे हो। थैंक यू। मैम सर का दोबारा कनेक्शन चला गया है शायद, तो मैम चलिए मैडम, मैं उसमें कुछ कहना चाह रहा था, कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैडम सर जो बोल रहे थे, ये जो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसको मेरा जो मानना है, मैंने जो अध्ययन किया है उसमें द प्रॉब्लम या इंट्रोडक्शन एक ही बात है, लेकिन उसको दो भागों में बांट लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक तो द राशनल ऑफ द प्रॉब्लम और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, तो वो बेटर चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला हो जाता है, मेरा जो मानना है। स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स वाला है, तो इसमें दो इंट्रोडक्शन दे दीजिए, चाहे द प्रॉब्लम दे दीजिए, हेडिंग एक ही बात है, और उसके दो पार्ट कर दीजिए आप, द रैशनल ऑफ द प्रॉब्लम और द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद चलता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेकंड, तो ज्यादा बेटर होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी तो देना है। नहीं, वो तो सारे चैप्टर है, मैं तो शुरू की बात कर रहे थे ना, वो इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रोडक्शन उसकी बात कर रहे थे। हिस्टोरिकल वो भी तो देना पड़ेगा किसी वो सभी इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है ना, कि आप जो रैशनल ऑफ द प्रॉब्लम है वो यही तो है कि आप किस बारे में क्या करना चाह रहे हैं, क्या है, और उसके बाद स्टेटमेंट में आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स आपके। सर बहुत नॉलेज रखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, मगर उनका वाईफाई खराब हो रहा है। मैम प्रिंसिपल मैम शायद सर का नहीं जुड़ पा रहे हैं सर हमारे साथ, पर मैं सोच रही हूँ कि एक बार उनको थैंक्स हो जाए तो ये ठीक रहेगा। तो लेट अस वेट फॉर हिम फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। लेकिन मैम क्या पता वो आपको सुन रहे हो, तो आप बोल दीजिए। नहीं अभी लेफ्ट किया है उन्होंने, अभी छोड़ा है ग्रुप। हाँ किसी को कुछ कहना हो तो यू कैन। हाँ, मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ मैडम, आप कहिए तो। यस प्लीज। एक तो जो
हम टेक्निक की बात कर रहे थे, प्राइमरी डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। मैं डॉक्टर उदयपाल सिंह, कन्नौज। ओके जी, चले जाओ आराम से चले जाओ। जो हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन और टेक्निक्स और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन टेक्निक्स की बात कर रहे थे मैडम, उसमें कभी कभी दिक्कत ये आती है कि आप जो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वो संभव नहीं है कि आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सके। तो जो अच्छी रिसर्च मानी गई है उसमें हम लोगों को कंटेंट एनालिसिस प्रयोग कर लेना चाहिए, मजबूरी हो जाती है। अच्छा चलिए ठीक है, बाद में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, बाद में डिस्कशन कर लेंगे। हाँ सर, स्क्रीन पर आ गए हैं सर, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। पचौरी सर, अपने को अनम्यूट कर लीजिए आप। ओके फाइन, यस वी कैन हियर यू। हाँ, क्या क्वेश्चन था? अब दोबारा बोलिएगा, क्या क्वेश्चन था? हेलो। तो संदर्भ ग्रंथों को किस प्रकार से लिखा जाए, क्योंकि विद्वानों में मतभेद है। क्या मतभेद है, बताइए आप, क्या मतभेद है? कई लोग पहले नाम लिखते हैं, कई लोग पहले पुस्तक को लिख देते हैं, कई लोग पहले मतलब जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो किस प्रकार से लिखा जाए, कौन सा? देखिए दो चीजें समझने की कोशिश करिए। बिब्लियोग्राफी में जब आप बात करते हैं तो उसमें रेफरेंसेस भी होते हैं और वो भी होते हैं जिनका आपने इस्तेमाल नहीं किया अपनी रिसर्च में। ओके, बिब्लियोग्राफी इज ए लिस्ट ऑफ बुक्स विच यू हैव यूज्ड। रेफरेंस बुक्स भी हैं जिनको भले ही आपने अपनी रिसर्च में यूज न किया हो, वो एक सिस्टमेटिकली बिब्लियोग्राफी अलग होती है। लेकिन जब आप रेफरेंसेस की बात करते हैं, जहां अपनी रिसर्च में अंदर उसे कोट करते हैं उसको आप, ओके, तो उसमें क्या होता है, उस व्यक्ति का सरनेम से ही पहले लिखेंगे कि उसको, और एक बार जो वो यूज हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आप एक रेफरेंस ले रहे हैं मैडम जैन का, तो आप लिखेंगे जैन सीमा 1958 या 1970 कोई किताब है, और जो भी किताब है वो लिखा आपने, और उसके बाद आपने लिखा कि उस किताब के किस पेज नंबर से आपने लिया है। देखिए, वो दैट पेज नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सीमा जैन को आगे अगले चैप्टर में फिर कहीं यूज कर रहे हैं, तो वहां सीमा जैन की जरूरत नहीं, वहां आईबिट कर देते हैं हम आपको। ओके, आईबिट कर देंगे, उसकी जरूरत नहीं है कि आप पुनः जो उसमें लिखें। हाँ, उसमें लिखेंगे और उसमें पेज डाल देंगे आप। रेफरेंसेस में जब आप बात करते हैं, जब आप रेफरेंसेस को एक सिस्टमेटिकली हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं बिब्लियोग्राफी में, कुछ जगह बिब्लियोग्राफी में लोग क्या करते हैं, जो आजकल ई जर्नल्स आ गए तो ई जर्नल्स को अलग ले लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिस्टमेटिकली जितना भी है वो पूरा एक अल्फाबेटिकली आप अरेंज करिए उसको अपने बिब्लियोग्राफी में। तो बिब्लियोग्राफी में रेफरेंसेस भी आएंगे, वो किताबें भी आएंगी जो आपने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन आप और लोगों के लिए कहना चाहते हैं कि इस पर उन किताबों को भी पढ़ें आप। राइट? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और कुछ पूछ रहे थे एक साहब अभी तो। मैम, डॉक्टर कल्पना गुहा मैम पूछना चाह रही है। आप पहले अपने को अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए अपने को। यस, कल्पना गुहा जी। शी इज नॉट अवेलेबल। अभी एक साहब कुछ जो पूछ रहे थे, वो कंटेंट एनालिसिस के बारे में कुछ बात कर रहे थे। क्या क्वेश्चन था उनका? व्हाट ही वाज डिस्कसिंग? हाँ, तिवारी जी क्या पूछ रहे थे? One Repat Mahanta also wanted to ask something. हाँ, क्या मैम? अपने को कल्पना गुहा मैम, आप अपने को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। एक कोर्स ये। हेलो, यस सर, आपका बहुत शोषण कर रहे हैं ये लोग। नहीं, शोषण नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है। अगर कोई एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, आई एम रेडी टू। और इसके अलावा भी डॉक्टर कल्पना मैम, आप अनम्यूट करिए पहले, अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि पीजी स्टूडेंट्स जो हैं वो सोशल आउटरीच के लिए भी जाते हैं, डिजर्टेशन भी लिखते हैं और पीएचडी भी करते हैं।
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चनायर बनाते हैं उसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? इसको लेके बच्चे बहुत परेशान रहते हैं सर। क्वेश्चनायर मिनिमम एंड मैक्सिमम। हेलो अब आई आवाज? हेलो सर आ रही है सर। जी सर, मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चनायर में कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, मैं ये पूछना चाह रही थी सर। देखिए पीजी में आप डिजर्टेशन जब करते हैं तो सैंपल साइज आपका ज्यादा से ज्यादा 50-75 के करीब होता है, राइट? अच्छा 50-70 ओके। इससे ज्यादा सैंपल साइज हम नहीं लेते। 50 सैंपल साइज सफिशिएंट होता है पीजी स्टूडेंट्स के लिए। और उसमें देखिए क्वेश्चंस जो हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं। ये ध्यान रखिए, आपके ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होते हैं। सपोज आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो हर एक ऑब्जेक्टिव पर 5 या 6 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, राइट? ओके सर। इजीली इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर एनालिसिस में दिक्कत होगी। फिर उस बच्चे को इतना ज्यादा आपको एक ट्रेनिंग देनी है उसको ना, उसको स्लाइड बनाना है कि कैसे फील्ड वर्क करना है। तो इससे ज्यादा 25-30 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट। ओके सर, ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन था? एक पहले से किसी ने क्वेश्चन डाला हुआ था, वो कहाँ था? One from sir, Dr. Rabat Mahanta. हाँ, क्या है उनका? Sir, question is, should my thesis frame my field work as a case study, research or action research, since I was introducing an action and looking to evaluate, confirm and improve my literature-based design process frame real life data. नहीं, ये किस सब्जेक्ट के हैं? Question. What is his subject? Sir, I don't know about that, sir. So we should. है मैम, ये है. Rabat Mahanta can speak himself. I think that will be better if he can ask me directly. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Is he available? Is he available? Yeah, available है सर. आसामी लिटरेचर, ओके। जी, ये तो कोई और हैं। देखिए इनको जो भी और लोगों के लिए दोज पर्सन्स, वो इन्होंने कई चीजें एक साथ कर दी। एक तो वो बात कर रहे हैं कि कंटेंट एनालिसिस की बात, केस स्टडी की बात कर रहे हैं, एक वो इवेल्युएटिव स्टडी की बात भी कर रहे हैं इसमें शायद, है ना? इवेल्युएशन भी करना है, केस स्टडी भी करनी है, और एक शायद कंटेंट एनालिसिस भी की इसमें नहीं। जी सर, improve literature, improve my literature based design. Improved my literature based design. Literature based design, yes sir. Process from real life data. I am not following actually what type of topic he has selected for his study. So, but anyway, क्योंकि evaluative जो studies होती हैं, देखिए वो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की होती हैं, ओके? जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, उनकी हम evaluative स्टडी करते हैं। चाहे जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, जनधन योजना है, जैसे फॉर एग्जांपल जनधन योजना के बारे में, अभी कोविड के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, इवैल्यूएटिव स्टडी। हाँ, एक एक्शन रिसर्च की बात कर रहा था शायद, ही वाज टॉकिंग अबाउट एक्शन रिसर्च। जी सर, यस सर। एक्शन रिसर्च की बात की। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि इसके लिए जो एक प्रोग्राम लॉन्च होता है, ओके, पहले हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, और उसके बाद उसके बाद के इम्पैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्शन रिसर्च इज एंटायरली डिफरेंट एक्चुअली। एंड अगर आप उसमें सीधे सीधे किसी फील्ड में कोई अपने तरीके से उसको काम कर रहे हैं और किसी गवर्नमेंट के इवैल्यूएटिव प्रोग्राम में है, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द एक्शन रिसर्च, है ना? एक्शन रिसर्च पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, देयर इज वन बुक एक्चुअली, डॉक्टर रामदास, है ना? He has written a book on action research, और एक छोटी सी किताब है गवर्नमेंट का, उसको अगर ये पढ़ें, अगर वो मिल जाती है तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल टू हिम। ओके, well, let us conclude the session. I ask Dr. Parul Jain and Dr. Santosh. Thank you, sir. Thank you very much for your precious and valuable comments and suggestions.
on type of societies, Google Uncle, research method, review of literature, hypothesis, research design, census study, simple study, data collection and editing, report writing and bibliography. It is very well said that for the development of any scholar or educator, research plays a very vital role and for being conducting any research. Methodology is also very important. And sir, from your all valuable suggestions, we all are really get very benefited. Now, I request our principal ma'am to come and say few words on the session and give votes of thanks to everyone. Ma'am? Yes. Yes. A lot has been said about research methodology. Because when we were doing research, sir, so we were given MLA style sheet. Yes. And MLA style sheet, and we used to frame our thesis according to MLA style sheet. But these days, you know, in current scenario, a lot of change has taken place, and so research methodology is a specific procedure, or it is a technique used to identify and select, process and analyze the information about a topic, as far as I know. And you have beautifully, and you have in minutiae you have detailed each and everything about research methodology. And sir, your lecture is beneficial to both, you know, to teachers who are undergoing the research and the teachers who are guiding the research. So I think your lecture was very useful and beneficial and fruitful to all of us. And sir, I would like to apologize for the, you know, my comments, you know, my informal comments. So because I wanted to infuse a kind of a humor amid the lecture. So I would like to thank you very much, sir. Sir, I express my deep gratitude for your precious time and for your precious lecture, for your precious address, and very realistic and very informative, very insightful, very intellectual, and very emotional lecture you have given us. Sir, we are very thankful to you. So on behalf of my management team and on behalf of my faculty members, I am very thankful to you, and I express my deep regards for you. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Seema ji. Thank you very much, and thank you, coordinator Parul, and all those persons who were associated with this. I am sorry, actually there was some disconnection and all these things. Okay, but that was beyond my control, because this is the problem with the net problem was there, Wi-Fi problem was there. Anyways, it was a very good session. But sir, your lecture was so interesting that we bore with it, and we didn't fudge even an inch. We were eagerly waiting you to come back. I am thankful to you particularly, because you invited me and you gave me this opportunity to interact with all the persons, those who are my colleagues and teaching in different colleges. And you can give my mail ID to them, and if they are having any question, they can directly contact me. I have sent you my mail ID also, and my number is also with you. Those persons who are having any doubt, any question in future also, they are free to discuss with me. They can contact me at any time. Sir, Thank you very much. सर अपना नंबर लिखवा दीजिए सर, नंबर, फोन नंबर. So please give your mail ID. Speak your mail ID. मेल आईडी लिखिएगा ज्वाला पचौरी, JWALA. आपको मेरा पूरा नाम पता लग जाएगा आज. Yes, you are like a Jwala. You are like a flame. सर मोबाइल नंबर भी बताइए. पहले इसको लिख लीजिए, JWALA पचौरी, PACHAURI, ज्वाला पचौरी @gmail.com. Very simple and easily, you know, our teachers can connect with you, sir, in future. And another, my number, there are my two numbers, 94120. 94120 29947.
And another number is 9557511 955 Yes, sir. 75 11 400 114 400. अच्छा 400 Okay. Okay, sir. Thank you once Okay, again. thank you very much to all of you. और देखिए कभी लॉकडाउन खुलने दीजिए, then I will come to Muzaffarnagar. Is not far away from my place, so I can come at any time. He's most welcome. Most welcome. Okay. Okay. Thank you very much to all of you for your. Thank you very much. And once again, I would like to pay my deep regard to Dr. Pachauri. And in the morning, we will again meet with Professor Hemla Agarwal and not Professor, audible. Khalsa College Patiala. He will be okay. So I'll speak tomorrow. Thank you so much. Thank you so much, all of you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.